students, how are you? Hope you all are very fine. Children, today we are going to start chapter 3 of your geography book, and the title of the chapter is Water Resources. In the previous video, we had studied about the forest and wildlife resources and vegetation, and from today we will study about the water resources. As you know, water is a very important factor for our life. So let's see. You already know that 3/4 of the earth's surface is covered with water, but only a small proportion of it accounts for fresh water that can be put to use. This fresh water is mainly obtained from surface runoff and groundwater that is continuously being renewed and recharged through the hydrological cycle. All water moves within the hydrological cycle, ensuring that water is a renewable resource. You might wonder that if 3/4 of the world is covered with water and water is a renewable resource, then how is it that countries and regions around the globe suffer from water scarcity? तो चिल्ड्रन, जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो हमारी अर्थ है वो लगभग 3/4 पार्ट उसका वाटर से कवर है, और उसके बावजूद भी हमें जो फ्रेश वाटर है वो पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होता है। आप ये भी जानते हैं कि वाटर साइकिल की वजह से जो वाटर है वो रीन्यूएबल रिसोर्स है। तो अब आपके दिमाग में ज़रूर क्वेश्चन आता होगा कि अर्थ में 3/4 वाटर है, उसके बाद भी वो रिसाइक्लेबल भी है, उसके बाद भी स्कार्सिटी क्यों है, कमी क्यों है पानी की। तो चलिए हम देख लेते हैं वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर पहले ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम नोट्स के थ्रू इस चैप्टर को और अच्छे से समझेंगे। So water scarcity and the need for water conservation and management. Given the abundance and renewability of water, it is difficult to imagine that we may suffer from water scarcity. The moment we speak of water shortage, we immediately associate with regions having low rainfall or those that are drought prone. We instantaneously visualize the desert of Rajasthan and women balancing many matkas used for collecting and storing water and traveling long distance to get water. True, the availability of water resource varies over space and time, mainly due to the variations in seasonal and annual precipitation. But water scarcity in most cases is caused by overexploitation, excessive use and unequal access to water among different social groups. Where is then water scarcity likely to occur? As you have read in the hydrological cycle, fresh water can be obtained directly from precipitation, surface runoff and groundwater. Is it possible that an area or region may have ample water resource but is still facing water scarcity? Many of our cities are such examples. Thus, water scarcity may be an outcome of large and growing population and consequent greater demands of water and unequal access to it. A large population requires more water not only for domestic use but also to produce more food. Hence, to facilitate higher food grain production, water resources are being overexploited to expand irrigated areas for dry season agriculture. Irrigated agriculture is the largest consumer of water. Now it is needed to revolutionize the agriculture through developing drought resistance crops and dry farming techniques. तो चिल्ड्रन, वाटर स्कार्सिटी क्यों होती है और हमें वाटर कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है, मैनेजमेंट करने की ज़रूरत क्यों है। तो देखिए, आपने जैसे देखा है कि जहाँ भी आप वाटर स्कार्सिटी की बात करते तो आपके दिमाग में तुरंत डेजर्ट एरियाज़, राजस्थान एरियाज़ दिमाग में घूम जाते हैं, जहाँ वीमेन जो होती हैं पानी के लिए बहुत दूरी तय करती हैं बहुत सारे
जो है पॉट्स रखे हुए। तो इस तरह से जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो हम किससे जोड़कर देखते हैं कि वो एरिया वाइज का रेनफॉल कैसा है वहाँ पर, उससे जोड़कर देखते हैं कि हाँ जिस एरिया में वाटर स्कार्सिटी है वहाँ रेन अच्छे से नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादातर वाटर स्कार्सिटी जो है, जो पानी की कमी जो है, वो ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से होती है और उसका ज़्यादा यूज़ करने की वजह से भी होती है। इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है कि जो वाटर है, वाटर की जो सप्लाई है वो सभी जगहों पर अनइक्वल है। मतलब किसी को 24 घंटे पानी मिल रहा है और किसी को पानी नहीं मिल रहा है। इसके साथ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और डिमांड बढ़ने से पूर्ति जो है वो कम होती जा रही है। एक ये कारण है। फिर दूसरा जो है वो कितना भी रिसाइकल हो, क्या होता है कि जो बारिश का पानी आता है वो धरती में चला जाता है और वहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स आपने देखे होंगे जो कि ट्यूबवेल वगैरह का यूज़ करके खेती कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम होता जा रहा है और ये जो ग्राउंड वाटर लेवल कम होने से ऑब्वियसली जो पानी है वो धीरे धीरे वर्षा का समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए बारिश भी कम होने लगती है। तो ये सारे रीज़न्स हैं। इससे हमारा जो एग्रीकल्चर है, मान लीजिए यदि हमने रेन वाटर को कलेक्ट करना शुरू कर दिया तो जो एग्रीकल्चर है फिर हम उसे ड्राई सीजन में भी कर सकते हैं और इरिगेटेड जो एग्रीकल्चर है उसका यूज़ कम कर लें। दैट मीन्स धरती से पानी कम निकाल लें और जो रेन वाटर है उसे हम कलेक्ट करके और फिर एग्रीकल्चर करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि जो सूखे इलाके हैं वहाँ पर ऐसी कृषि की जा सकती है जहाँ से कि पानी जो है कम लगे, या ऐसी टेक्निक्स के द्वारा यूज़ करें ताकि जो है वाटर की प्रॉब्लम को हम समाप्त कर सकें। अब वाटर देखिए, वाटर तो हमें मिलता है लेकिन क्या होता है कई बार कि वो यूज़फुल नहीं होता है। यूज़फुल नहीं होता है दैट मीन्स कि उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह मिले होंगे और जो कारखाने वगैरह होते हैं, एमएनसीज वगैरह होती हैं, उनमें क्या होता है कि जो सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वहाँ तो ज़रूरत ही है। तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होगी तो वो भी किससे बनती है, वाटर से ही बनती है। तो लगभग 22% वहाँ चला जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जो है पानी की कमी हो रही है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि यदि पानी की कमी होगी तो हम सभी की जो है हर प्रकार से हमारे जीना मुश्किल हो जाएगा। हमें फूड की कमी होने लगेगी, है ना। फूड सिक्योरिटी के लिए वो खतरनाक है, हमारे जीवन के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमारा इकोसिस्टम जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ये बहुत सारे रीज़न्स हैं इस जो कि हमें ये इस सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि जो वाटर है उसे हम किस तरह से बचाएं, क्योंकि जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम है। बाकी जो 3/4 ज़रूर हमारी अर्थ भरी हुई है, वो कवर है वाटर से, लेकिन जो फ्रेश वाटर है वो पीने में सिर्फ 1% ही है, वही डिस्ट्रीब्यूट है और उसी का यूज़ जो है वो हो रहा है। बाकी जो है वो यूज़फुल नहीं है और यही एक कारण है कि हम जो है 3/4 अर्थ जो है वाटर से कवर होने के बावजूद भी हम सब जो है वो वाटर स्कार्सिटी को झेलते हैं। उसका जो मेन कारण क्या है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया की, उसके बाद उसका यूज़ बहुत ज़्यादा है और जो डिफरेंट टेक्निक्स आ गई हैं, उन डिफरेंट टेक्निक्स की वजह से यदि कुछ स्टोर होता भी है, चाहे ग्राउंड वाटर में हो के रूप में हो, चाहे नदियों में, तो वो पॉल्यूशन की वजह से या ओवर यूज़ की वजह से उसका जो है उसका कमी उसकी हो जाती है। तो चलिए नोट्स देख लेते हैं। इन द 1st century BC, Sri Gavanapura near Allahabad had sophisticated water harvesting system channeling the flood water of the river Ganga. During the time of Chandragupta Maurya, dams, lakes and irrigation system were extensively built. Evidence of sophisticated irrigation works have also been found in Kaling, Nagarjunakonda, Banur, Kolhapur, etc. The 11th century Bhopal Lake, one of the largest artificial lakes of its time, was built. In 14th century, the tank of Hauz Khas, Delhi, was constructed by Iltutmish for supplying water for Shiri Fort area.
Water resources. We already know the 3/4 of the earth's surface is covered with water, but only a small proportion of it accounts for fresh water that can be used. This fresh water is mainly obtained from surface runoff and groundwater that is continually being renewed and recharged through the hydrological cycle. All water moves within the hydrological cycle, ensuring that water is renewable resource. चिल्ड्रन देखिए, वाटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, आप जानते ही हैं। और वाटर जो है, फ्रेश वाटर की जो है, लेकिन वो बहुत कमी है। हम जानते हैं कि वाटर जो है वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के द्वारा रीन्यू हो जाता है, तो यह एक रीन्यूएबल रिसोर्स है। और पहले जो हमारे हिस्ट्री में जो हमारे लोग थे, वो जानते थे कि वाटर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पहले ही के समय यहाँ तक कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक में भी डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम वगैरह ये बनाया गया था। 11वीं सेंचुरी में भोपाल में लेक बना, और 14वीं सेंचुरी में देखें जाए तो दिल्ली में हौज खास बनाया गया इल्तुतमिश के द्वारा। तो आप जानते ही हैं कि बहुत चंद्रगुप्त मौर्य के समय का देखें, चाहे हम भोपाल का देखें, चाहे हम इल्तुतमिश के समय का देखें, चाहे हम कलिंग, नागार्जुन कोंडा, बैनूर, कोल्हापुर, ये सारे सिस्टम्स को देखें, तो हम देखें कि जो हमारे पुराने लोग थे, जो हमारे पुराने रूलर्स थे, वो पानी की वैल्यू समझते थे, और इसलिए वो इस तरह से पानी को स्टोर करने की या दूसरी व्यवस्थाएं बना करके रखते थे। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि हमारे जो लोग थे वो बहुत समझते थे कि वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसे यूज़ करना कितना उसे स्टोर करना कितना ज़रूरी है, किस तरह से उसे स्टोर किया जाए, इसके लिए भी वो काम करते थे। Now, water scarcity and the need for water conservation and management. The moment we speak of water shortage, we immediately associate it with regions having low rainfall or those that we drought prone. The availability of water resources varies over space and time, mainly due to the variations in seasonal annual precipitation, but water scarcity is in most cases caused by over exploitation, excessive use, and unequal access to water among different social groups. Water scarcity may be an outcome to large and growing population and consequent greater demand for water and unequal across to it. A large population means more water, not only for domestic use but also to produce more food. Hence, to facilitate higher food grain production, water resources are being overexploited to expand irrigated areas and dry season agriculture. Post-independent India witnessed intensive industrialization and urbanization, creating vast opportunities for us. The ever-increasing number of industries has made matters worse by exerting pressure on existing freshwater resources. Industries, apart from being heavy users of water, also require power to run them. Today in India, hydroelectric power contributes approximately 22% of total electricity produced. So children, हमने देखा कि वाटर स्कार्सिटी क्यों हो रही है, क्यों कंजर्वेशन वाटर का ज़रूरी है, मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। देखिए, तो हम अभी मैंने आपको समझाया था कि वाटर जो है की शॉर्टेज जब होती है तो हमें ज़्यादातर ड्रॉट एरियाज़ याद आते हैं जहाँ पर ज़्यादा कम रेन फॉल होता है। और लेकिन मेन क्या है, मेन इसका रीज़न क्या है वाटर स्कार्सिटी का? मेन रीज़न ये है कि जो लोग हैं बहुत ज़्यादा उसका यूज़ करते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं। दैट मीन्स पॉल्यूशन वगैरह के थ्रू ओवर यूज़ उसका हो रहा है। और जो वाटर की जो सप्लाई है, मतलब जो लोगों के बीच में वाटर बटा हुआ है, वो अनइक्वल है। कैसे अनइक्वल है? कुछ लोगों तक, कुछ एक सोशल ग्रुप है वहाँ तक 24 घंटे पानी की सुविधा उपलब्ध है, कहीं कम है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो वाटर की कमी होती है। अब देखिए, यदि पॉपुलेशन बढ़ेगी
तो जो वाटर है सिर्फ डोमेस्टिक यूज़ के लिए ही नहीं बल्कि जो फूड है उसे ग्रो करने के लिए भी तो वाटर चाहिए ना। तो ये सारे रीजंस हैं, सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं जिससे कि जो वाटर है वो उसकी कमी हो गई है। अर्बनाइजेशन हो, शहरीकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और इसकी वजह से जो वाटर है वहाँ भी ज़्यादा लगता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से जो वाटर है उसकी कमी होती है। तो अब इस कमी को दूर कैसे किए जाए, तो गवर्नमेंट ने हमारे, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे जो पुराने रूलर्स थे वो वाटर की जो महत्वता थी उसे समझते थे और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे लेक्स और बहुत सारे सिस्टम बनाए हुए थे। उसी तरह से अब जब हमारी पूरी दुनिया भी अब जागृत हुई है और जो वाटर है उसके लिए किस तरह से उसको स्टोर किया जाए, किस तरह से उसको रिन्यू किया जाए, किस तरह से उसे ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर को यूज़ किया जाए, वो सारी चीज़ों के लिए अब अवेयर हुए हैं और बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन स्टेप्स को देखेंगे।